Hello, my dear students. I welcome you all to Dramatic Science. As you have seen in the thumbnail, this is basically lecture number 3 of the topic lens. Previously, I have discussed lecture 1 and lecture 2. Lecture 1 and 2 का link description box में होगा. उसको पहले ठीक से देखकर समझना होगा, right? So, in this lecture 3, we will discuss basically 3 topics. Number 1 is power of lens. Those who use spectacles, you know कि लेंस का एक फिक्स्ड पावर होता है एक स्पेसिफिक आई के लिए, एक स्पेसिफिक आई डिजीज के लिए प्रेफरेबली. सो दैट इज द पावर ऑफ लेंस. सेकेंड वन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस. दैट मीन्स वी विल यूज टू लेंसेस एट फर्स्ट विच विल बी इन केप्ट कॉन्टैक्ट. दोनों को कॉन्टैक्ट में रखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या फेनोमेना आता है. देन वी विल कीप दोज लेंस अपार्ट. वो दोनों लेंस के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस होगा एंड वी विल स्टडी द फैक्ट. Right? Next, last one, few questions related to displacement method on formation of real image by a convex lens. Displacement method क्या है ये तो बाद में I will tell. But real image formation of convex lens. Convex lens कैसे real image form करता है ये जानना ज़रूरी है. कैसे? If we place, kindly hear it sincerely, if we place an object, एक ऑब्जेक्ट को कन्वेंस लेंस जो है उसके फोकस दैट इज एफ और या फिर उससे ज़्यादा बिटवीन 2f और 2f से ज़्यादा हम लोग प्लेस करेंगे, देन वी विल गेट रियल इमेज. सपोज इफ वी ड्रॉ इट, लेट मी टेक अ पेन. सपोज दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस वन इज द कन्वेक्स लेंस, राइट? सो कन्वेक्स लेंस जो है, लेट मी चेंज द कलर. This one is उसका होता है basically f1 if we consider, and this one is 2f1. This one is if we say f2, then 2f2, right? If we place object over here, that is in between f and 2f, or over here or over here, then we will get real image in this side, right? So here we will use this concept to study our displacement method. Got it? So without wasting a moment, let's start with power of lens. So we have our first topic, that is power of lens, right? So power of lens, इसका definition क्या है? Power of lens is basically the reciprocal of focal length of a lens, right? मतलब एक लेंस का अगर focal length, as you can see, is f, अगर f उसका focal length होगा, then 1 by f is defined as the power of लेंस, राइट? सो इसका यूनिट क्या होगा? सिंपली जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर. तो सिंपली पावर हो जाएगा मीटर इनवर्स. ओके, एंड वी कॉल दिस, मीटर इनवर्स का नाम है डायोप्टर, दैट इज कैपिटल डी. दोज हु यूज स्पेक्टेकल्स, आई थिंक यू नो कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरा आई का पावर -2 है, दैट इज -2d प्लस 1.5 है, दैट इज प्लस 1.5d. Right? So this is the main unit of power of lens, that is diopter or D, right? In CGS, focal length will be in centimeter, that's why power will be centimeter inverse. So dimension क्या होगा? focal length तो simply length का dimension carry करता है, that's why power will be L inverse. Got it? Now here are several important topics, several important notes I can say. इफ एफ इज इन मीटर, मतलब अगर फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल रिप्रेजेंट पावर एज 1 बाई एफ डी, दैट इज डायोप्टर. अगर एफ को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, देन वी विल से पी इक्वल्स टू 100 बाई एफ, दैट इज डी. मतलब पावर का जो यूनिट है उसको सेम रखना होगा, उसको सिंपली डायोप्टर, इधर भी डायोप्टर इधर भी डायोप्टर, सिंपली ऊपर में जो है एक बार 1 एक बार 100, right, in terms of meter and centimeter. Next, third point is important point. ये काफ़ी MCQs में भी आता है. From Cauchy's concept, mu equals to 1 by lambda square. ये कहाँ से आया? ये concept मैंने refraction में बोला था. Let me write the equation. Then let me select the color. Yes. So Cauchy's इक्वेशन क्या था? सिंपली म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर. ये कहाँ पे था? ये सिंपली रिफ्रैक्शन का जो लेक्चर 1 है उसमें था.
So we can say that is mu, refractive index of a medium, is proportional to 1 by lambda square from this equation, right? And 1 by f proportional to mu, ये कैसे आया? सिंपली जो लेक्चर 2 में था, बेसिकली लेंस मेकर फॉर्मूला, उसमें क्या आया था? 1 बाई एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, फिर ब्रैकेट में 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू. तो इन दोनों का रिलेशन देखो, simply 1 by f proportional to mu, right, from Lensmaker formula. So that is 1 by f proportional to mu. अगर ये दोनों इक्वेशन को टैली करेंगे then we can say 1 by f proportional to lambda square, simply cross multiplication किया, that is f proportional to lambda square. That means if wavelength increases, अगर wavelength को increase किया जाए then focal length of a lens will increase. तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो रेड लाइट है लैम्डा आर, जैसे मैं इस स्लाइड में लिख रहा हूँ, अपने कॉपी में भी प्लीज़ नोट डाउन करके रखो. जैसे कि रेड लाइट, उसका वेवलेंथ है 8000 एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ अमंग द कलर्स ऑफ लाइट. तो रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो भी सबसे ज़्यादा होगा, राइट. सिंपली जो वायोलेट लाइट है लैम्डा वी, उसका वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, राइट. तो उसका फोकल लेंथ विल बी मिनिमम. ओके, सिमिलरली अगर एफ की जगह इधर से देखो, ये जो रिलेशन है इधर से हम लोग सिंपली एफ क्या कर सकते हैं, 1 बाई पी, राइट. एफ इक्वल्स टू 1 बाई पी. तो अगर एफ की जगह 1 बाई पी रिप्लेस करेंगे और 1 को उस तरफ भेज देंगे, देन पी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा स्क्वायर. मतलब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका पावर कम है, तो इधर क्या होगा, सिंपली पावर लेस हो जाएगा और वायलेट लाइट के लिए पावर ज़्यादा हो जाएगा, राइट. सो दिस टू आर MCQ क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन. रेड लाइट, उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, फोकल लेंथ ज़्यादा है, पावर लेस है. वायलेट लाइट, उसका वेवलेंथ कम है, फोकल लेंथ कम है, लेकिन पावर ज़्यादा है. ओके, सो फॉर रेड कलर लाइट पावर इज लेस. गॉट इट? सिंपल कंसेप्ट था. ओके, लेट्स मूव ऑन. Combination of lenses, that means we will use two lenses which will be connected or maybe separated apart. So case one में पहले क्या लिया, two lenses kept in contact. We are considering two convex lenses, as you can see L1 and L2. They are connected at this point, right? So say L1 and L2 are two thin lenses having focal length f1 and f2, दोनों का focal length simple. As the lenses are thin, so we consider two optical centers superposed at O. अच्छा, पिक्चर में तो ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है, दिस रीजियन, लेट मी क्लियर इट, इरेज ऑल. ये जो रीजियन है, दिस रीजियन इज O, राइट. सो दिस पोर्शन इज कंसिडर्ड एज कॉमन, यू कैन से ऑप्टिकल सेंटर. दोनों का ही ऑप्टिकल सेंटर हम लोगों ने एक पॉइंट पे कॉमन ले लिया. वाई? क्यों? Because these two lenses are very thin lenses. तो thin lenses अगर कंसिडर करेंगे, जो मिडल का जो width है, बेसिकली ये जो width है, this width, ये जो width है, this width will be small, right. तो दोनों का ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट में सुपर इम्पोज करेगा, that is O, which is called common optical center, right. Next slide, H2. Okay, now for first lens, that means फास्ट लेंस मतलब जो L1 लेंस था, बेसिकली इधर, नो पेज 1, यस, जो हम लोगों के पास L1 लेंस था, L1 लेंस के लिए देखो, दिस P इज द ऑब्जेक्ट, राइट. तो ऐसे L1 पे लाइट जाएगा, सिंपली ऐसे आना चाहेगा. इसको अगर एक्सटेंड करेंगे, दिस विल गो टू I डैश. दिस वन इज द इमेज, I डैश इज द इमेज ऑफ द लेंस L1. लेकिन बीच में क्या हुआ, L2 आ गया, तो ये जो रे था ये डेविएट होके I से निकल गया. गॉट इट? I डैश पे आ सकता था, लेकिन बीच में L2 आ गया, तो वो जो रे था वो I होके निकल गया. सो फॉर L1 ऑब्जेक्ट इज P1 एंड इमेज इज I डैश. ओके, फॉर L1 P ऑब्जेक्ट है एंड I डैश इज द इमेज. गॉट इट? तो सिंपली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, दैट इज OP माइनस U, वो तो ऑपोजिट में है. O I डैश बोला था, I डैश इमेज होगा,
तो ओ आई डैश को V1 कंसीडर किया और फोकल लेंथ तो पता ही है F1। तो लेंस का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, 1/V 1/U 1/F। आई थिंक यू नो इट, लेक्चर 2 में था जनरल फॉर्मूला ऑफ लेंस, तीनों केस था, एक में मैंने किया था, 2 होमवर्क था। सो सिंपली V की जगह V1 डाल दिया, U की जगह -U डाल दिया, सो इट विल बी प्लस, एंड F की जगह F1। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। सिंपल, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट लेंस दैट इज L2। चलते हैं L2 की तरफ। सो विथ रेस्पेक्ट टू L2 इफ वी ट्राई टू कैलकुलेट, ये जो लेंस है L2, इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो L2 के साथ ये जो P है ऑब्जेक्ट, इसका तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। L2 जो लेंस है इसके साथ ये P ऑब्जेक्ट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट P इज नॉट द ऑब्जेक्ट फॉर L2। गॉट इट? P is not the object for L2. Then you can say तो सर ऑब्जेक्ट कौन होगा? L2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? L2 के लिए this I dash is the object. L2 के लिए this I dash is the object and this I is the image. क्यों? Why? Because जो मैंने रे डायग्राम थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था, इधर से जो लाइट आ रहा था टूवर्ड्स I dash, वही तो I की तरफ चला गया। आई डैश में जो लाइट आ रहा था वही आई की तरफ चला गया। दैट मीन्स वी से आई डैश इज द ऑब्जेक्ट ऑफ L2 व्हिच हेल्प्स अस टू फॉर्म आई। गॉट इट? सो L2 के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई डैश। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी ओ आई डैश, इमेज डिस्टेंस विल बी ओ आई। ओके, लेट्स सी इट। दिस वन ऑब्जेक्ट ओ आई डैश दैट इज प्लस V1 कंसिडर किया। क्यों? क्योंकि दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। तो लाइट तो बेसिकली इस तरफ जा रहा है फ्रॉम P एंड वी आर मेजरिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट? सो दैट इज प्रेफरेबली पॉजिटिव। दैट्स व्हाई ओ आई डैश कहा गया। ये पॉजिटिव ओ आई, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि लाइट की डायरेक्शन में है। सिंपल कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, दैट इज V, फोकल लेंथ F2, मिरर का फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दिया, V की जगह V, U की जगह V1 एंड F2। इक्वेशन नंबर 2, फिर दोनों को ऐड किया, इक्वेशन 1 2 को ऐड किया, ऐड करके 1/V1 1/V1 कैंसिल हो गया एंड वी विल हैव दिस इक्वेशन 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2, राइट? अब नाउ हियर सिंसियरली, ये जो फॉर्मूला आया 1/VU plus 1/U equals to something plus something, this is due to the formation or the combination of these two lenses. ये जो दो लेंस है बेसिकली L1 L2, इन दोनों का टोटल कॉम्बिनेशन का इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस, राइट? नाउ इफ वी कंसिडर अनदर लेंस, अगर हम लोग सेम और एक लेंस कंसिडर करेंगे, एक सिंगल सा लेंस जो इन दोनों का जो काम है उसको रेप्लिकेट करेगा, दैट इज P, दैट इज I। आ रहा है बात समझ में? ये दोनों लेंस जो काम कर रहा था उसको सिंपली रेप्लिकेट करेगा सिंगल लेंस जिसका ऑब्जेक्ट है P एंड इमेज इज I। देन वी कैन से दिस लेंस एज इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस। गॉट इट? मतलब ये जो दो लेंस हम लोगों ने कंसीडर किया, इन दोनों का काम, इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स जो लेंस रेप्लिकेट करेगा, सिंपली फॉलो करेगा अ सिंगल लेंस, डेफिनेटली दैट विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंस। ओके, सो उस लेंस के लिए दिस विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U एंड दिस विल बी द इमेज डिस्टेंस V एंड उस लेंस का फोकल लेंथ इज सिंपली F। तो उसका इक्वेशन क्या होगा? दिस वन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U, इमेज डिस्टेंस V, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ F, देन उसका इक्वेशन, ये जो नॉर्मल जनरल फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो U तो माइनस है, देन वी विल गेट दिस। दिस इज इक्वेशन ऑफ 4। ये किसका इक्वेशन है? फिर से इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। गॉट इट? फिर ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को टैली करेंगे, देन वी कैन से 1/F इक्वल्स टू दिस वन 1/F1 प्लस 1/F2। ये देखो
1 by f equals to 1 by f1 plus 1 by f2 and this is called equivalent focal length. अगर दो लेंस को टच्ड में रहेंगे, सिंपली कांटेक्ट में होगा, तो फोकल लेंथ का रिजल्टेंट का फॉर्मूला विल बी समथिंग लाइक दिस. एंड पावर इज 1 by f, तो पावर भी सिंपली 1 by f की जगह p1 एंड सॉरी p 1 by f की जगह p, 1 by f1 की जगह p1, 1 by f2 की जगह p2. दैट इज पावर इक्वल्स टू p1 plus p2. Simple. That is equivalent power, right? Next, few points to remember. Number one is consider one focal length of a convex lens. तो एक लेंस हम लोगों ने convex consider किया, having focal length f1. Another lens, concave lens, जिसका focal length minus f2. concave का minus होता है, जो basically general formula of lens lecture 2 में था. तो उसको हम कैसे drawing कर सकते हैं? दिस वन इज द कन्वेक्स लेंस एंड उसके साथ अटैच्ड में एक कनकेव लेंस है, राइट? सो दिस वन इज द डायग्राम. इसका फोकल लेंथ इज f1 एंड इसका फोकल लेंथ इज प्रेफरेबली माइनस f2. तो ये जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा? सिंपली दिस फॉर्मूला कैन हेल्प अस, राइट? सो 1 by f1 तो कन्वेक्स के लिए हो गया, कनकेव के लिए f2 की जगह माइनस f2, दिस वन. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. उधर से सिंपली f को निकाल लिया. ओके, अब ये जो दो लेंस मिला के जो इक्विवेलेंट लेंस क्रिएट हुआ, वो सिंपली कन्वेक्स नेचर का हो सकता है, कनकेव नेचर का हो सकता है और कुछ अदर्स नेचर का भी हो सकता है. तो उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो नंबर वन इज इफ f1 ग्रेटर देन f2. f1 किसका फोकल लेंथ था? फटाफट, कन्वेक्स लेंस का. f2 किसका था? कनकेव का. तो अगर f1 दैट इज कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f2 से ज्यादा होगा, देन f विल बी नेगेटिव. क्यों नेगेटिव होगा? देखो ये नीचे तो f1 ज्यादा हो गया, f1 के आगे नेगेटिव साइन है, दैट्स व्हाई f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव. और नेगेटिव मतलब concave lens. That means the combination will behave as a concave lens. Okay? अगर f1 कम हो जाएगा, then f will be positive, then वो जो पूरा combination will behave as a convex lens. अगर by default और by chance दो focal length same हो गया, तो नीचे simply ये value put कर दो, दोनों की जगह same cancel हो जाएगा. That is 0. 1 by 0 is infinity. Focal length infinity. इसका मतलब क्या है? This represents plane plate. Basically mirror में भी था, जो मिरर था रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर. आई थिंक यू रिमेंबर दिस. प्लेन मिरर जो था, प्लेन मिरर का इक्वेशन भी f इक्वल्स टू इंफिनिटी होता है. तो रिफ्रैक्शन में, लेंस में वी कैन से दिस विल बी प्लेन प्लेट, राइट? उसमें क्या था? प्लेन मिरर, इसमें प्लेन प्लेट. गॉट इट? सो ये हो गया जब दो लेंस आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, दोनों एकदम क्लोज टच्ड है. लेकिन अगर इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, दोनों के बीच थोड़ा सा गैपिंग हो गया, दैट इज a, तब क्या होगा? तब कनकेव का होगा दिस वन. ये फॉर्मूला सेम है, 1 by f1 plus 1 by f2 प्लस a by f1 f2. कन्वेक्स के लिए भी ये फर्स्ट टू टर्म्स आर सेम, लेकिन थर्ड टर्म देखो एक माइनस आ गया, राइट? तो मैंने इसको कैसे लिख दिया? आई एम रियली सॉरी टू से, इसका प्रूफ यू विल गेट इन BSc इफ यू गो थ्रू फिजिक्स. डेफिनेटली BSc में होगा. तो अभी के लिए बस जस्ट नोट इट डाउन कि a by f1 f2 और सिंपली माइनस a by f1 f2 इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस a. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट स्लाइड. नाउ हियर वी हैव स्टार्टेड डिस्प्लेसमेंट मेथड. ये जो पूरा कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट मेथड. ओके, क्या करेंगे? सेवरल प्रूफ्स करेंगे, सेवरल you can say sums or no theory, कुछ भी is based on this displacement method. इसका concept क्या है? What is displacement method? Simply displacement method is just a I can say process to get real image by using a convex lens. convex lens को use करेंगे, simply एक process apply करेंगे, एक method apply करेंगे जिससे हम लोग real image form कर सकते हैं by changing the position of either lens or the object. Okay, that is the displacement method. मतलब displacement होगा. इधर at this no topic, our concept, we will consider the displacement of lens.
हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, सिंपली जो लेंस भाई साहब है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका मूवमेंट होगा, एंड आवर ऑब्जेक्ट एज यू कैन सी इन द डायग्राम, this object and this screen will be at fixed position. ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फिक्स पोजीशन में होगा, लेकिन इस लेंस को हम नहीं छोड़ेंगे, इसको बार बार मूव करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट सम क्या है, सो दैट इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट मतलब दिस वन एंड द स्क्रीन मतलब दिस वन इज ग्रेटर देन 4 टाइम द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ओके, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट और ये जो स्क्रीन है इन दोनों का डिस्टेंस, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो d, अगर d ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, देन वी विल गेट 2 रियल इमेजेस फॉर 2 पोजीशन ऑफ कन्वेक्स लेंस. ये प्रूफ करना है. तो कंडीशन क्या है, अगर d ग्रेटर देन 4f होगा, देन फॉर 2 पोजीशन ऑफ लेंस, मतलब सपोज ये एक ही लेंस है, हाँ, दिस टू आर सिंपली वन लेंस, ये L और ये L डैश, 2 पोजीशन के लिए 2 रियल इमेज आएगा. 2 पोजीशन के लिए 2 रियल इमेज, मतलब 2 पोजीशन मतलब U1 U2 आएगा, 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देन वी विल गेट 2 इमेज डिस्टेंसेस V1 V2, राइट. तो सिंपली यही डायग्राम, इस सम के लिए डायग्राम इज गिवन. दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लेंस, U1 is the object distance and V1 is the image distance, देखो स्क्रीन से डिस्टेंस, and this one is the second position, U2 object and इधर से V2 is the image. Got it? अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट किया, this x, simply x is the displacement of the lens. एकदम आराम से सिंपल. PQ is the object as you can see in the diagram, L dash L, L डैश होना चाहिए कन्वेक्स लेंस. ये सिंगल कन्वेक्स लेंस है, प्लीज मत समझना कि ये 2 लेंस है, एक ही लेंस है भाई साहब, वी आर जस्ट मूविंग इट. एस इज द स्क्रीन. सो नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी माइनस यू, सिंपल, ये तो फिक्स्ड है, मतलब सिंपल रियल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ही होता है. इमेज इज प्लस वी, क्योंकि रियल इमेज फॉर्म होगा तो पॉजिटिव होगा, वो भी मिरर इक्वेशन में था, सॉरी लेंस इक्वेशन में था, जनरल फॉर्मूला ऑफ लेंस, एंड फोकल लेंथ इज प्लस एफ. तो जो लेंस का जो फॉर्मूला है, अगर उस पर वैल्यू पुट कर देंगे u की जगह माइनस यू, देन वी विल गेट दिस इक्वेशन. आई विल सजेस्ट यू माय डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखो, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. क्यों सर, इसको क्यों याद रखें, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस फॉर्मिंग रियल इमेज. कन्वेक्स लेंस जब भी रियल इमेज फॉर्म करेगा, हम लोगों को ये इक्वेशन यूज करना है, वो साम्स में हो या फिर प्रूव में हो या फिर किसी भी रियल इमेज फॉर्मेट का क्वेश्चन हो, उसमें ही हम लोगों को दिस इक्वेशन को यूज करना है, माइनस वाला नहीं. सो दिस इक्वेशन इज प्रेफरेबली इक्वेशन ऑफ अ कन्वेक्स लेंस फॉर्मिंग रियल इमेज. ओके, सो D इक्वल्स टू U प्लस V कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो D है, सिंपली U2 प्लस V2 दोनों को ऐड करेंगे तो D आएगा, और ऊपर में U1 एंड V1 दोनों को ऐड करेंगे तो भी D आएगा. सो D इज U प्लस V, उधर से V निकाल लिया, ये जो V का वैल्यू इस पे डाल दिया, D माइनस U. सिंपली LCM किया, LCM करके थोड़ा सा U कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, दिस वन, फिर माइनस कॉमन लिया, दिस वन. एकदम सिंपल अलजेब्रा, ये मतलब ये आप लोग मेरे से अच्छे जानते हो. नाउ वी विल यूज श्रीधराचार्य फॉर्मूला. आई होप आप लोगों को याद है कि फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. याद आया? सो दिस वन इज द श्रीधराचार्य फॉर्मूला. इधर x की जगह हम लोगों को क्या निकालना है, u, राइट. सो ये जो u है, दिस वन इज आवर x. सिंपल फॉर्मूला को अप्लाई करो, करके देखो, दिस विल बी आवर u. d प्लस माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df प्लस सॉरी बाई 2. ये जो df है ये पूरा c है, ओके, और ये जो माइनस d है, माइनस d इज बेसिकली b. गॉट इट? सो नाउ एक प्लस आया, एक माइनस आया, राइट. सो सिंपली वी कैन से u का 2 वैल्यू होगा, यस. तो u1 इज d माइनस एंड u2 इज d प्लस. तो इधर से बेसिकली 3 कंसेप्ट आएगा. ये जो रूट के अंदर है,
दैट इज डी स्क्वायर माइनस 4df, इसका एक नाम है इन टर्म्स ऑफ मैथ्स का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसके हिसाब से इसका एक नाम है, एंड दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ही तो बोलता है शायद, डी स्क्वायर माइनस 4df, राइट। सो इसको, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग इवेलुएट करेंगे कैसे। वी गेट 3 केसेस, तीनों केस हो सकता है। क्या क्या केस? ये जो डी स्क्वायर है ये 4df से बड़ा हो सकता है, लेस हो सकता है, या फिर इक्वल हो सकता है। तो पहले हम लोगों ने ग्रेटर देन चूज किया, डी स्क्वायर ग्रेटर देन 4df, तो सिंपली एक डी कैंसिल हो गया, तो सो d ग्रेटर देन 4f, मतलब d मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज ग्रेटर देन द 4 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। अगर d ग्रेटर देन 4f होगा, सोच के देखो, ये जो रूट के अंदर जो टर्म है ये तो पॉजिटिव होगा, d तो बड़ा है, तो अगर पॉजिटिव होगा देन रूट के अंदर पॉजिटिव मतलब रियल पार्ट है, देन डेफिनेटली वी विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ u1 एंड u2, ये u1 एंड u2 का 2 वैल्यू आएगा, राइट। एंड u1 u2 का 2 वैल्यू आएगा, देन डेफिनेटली देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ v1 एंड v1 एंड v2 का 2 वैल्यू आएगा, u1 से रिलेटेड v1 आएगा, u2 से रिलेटेड v2 आएगा। दैट मीन्स वी विल गेट 2 पोजिशन ऑफ कन्वेक्स लेंस वेयर वी कैन हैव 2 रियल इमेजेस। ओके, नेक्स्ट, अगर दो सेम हो गया, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4df, 2d मतलब एक डी कैंसिल हो गया, सो d इक्वल्स टू 4f, सिंपली ये जो इक्वेशन है इसमें डाल दो, d इक्वल्स टू 4f, देखो सिंपली u1 इक्वल्स टू d/2 होगा, u2 इक्वल्स टू d/2 होगा, सो u1 इक्वल्स टू u/2 इक्वल्स टू d/2, मतलब u1 u2 सेम हो गया, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट का पोजीशन में एक ही इमेज आएगा। u1 u2 सेम हो गया, देन डेफिनेटली वी कैन से v1 v2 भी तो सेम हो जाएगा ना। दैट मीन्स फॉर अ फिक्स्ड पोजीशन, एक ही पोजीशन में सिंपली एक ही इमेज आएगा। फॉर वन पोजीशन ऑफ द लेंस वी विल गेट वन रियल इमेज। तो इसको करने का कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। फिर से देखते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट और ये जो स्क्रीन, इन दोनों का डिस्टेंस अगर लेंस के फोकल लेंथ का समान होगा, इक्वल होगा, देन वी विल गेट एक ही पोजीशन में एक इमेज। ओके, अगर स्मॉल हो जाएगा, अगर d स्मॉल हो जाएगा, देन ये जो रूट के अंदर एक नेगेटिव आ जाएगा, d तो स्मॉल हो गया ना, तो नेगेटिव आ जाएगा, देन इट विल फॉर्म इमेजिनरी, एंड u1 u2 तो सिंपली लेंथ है, उसको हम इमेजिनरी कंसिडर नहीं कर सकते, देन डेफिनेटली u1 u2 विल बी इनवैलिड एंड thus v1 v2 विल बी इनवैलिड एंड thus देयर विल बी नो इमेज। सिंपल। लेकिन सर इतना सारा तो कर लिया, क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ये 1 था, आप लोगों को बस ये वाला करना है। मैंने और ऑल्टरनेट कर दिया, दिस एंड दिस, ये भी अदर्स क्वेश्चन में आ सकता है, जान के रखो, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन 1 था उसके हिसाब से सिंपली पूरा सम करके ये 1 करके ही छोड़ देना, राइट। एंड दिस 2 एंड 3 इसको याद रखो, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, इफ d इक्वल्स टू 4f तो फिर क्या होगा, इफ d लेस देन 4f नो तो फिर क्या होगा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट सम, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, जो कन्वेक्स लेंस हम लोगों ने चूज किया उसका फॉर्मूला होगा दिस वन, इसको प्रूव करना है। फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज एट 2 पोजीशन है, सेम, x इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 लेंस, जो मैंने डिस्क्राइब किया था, सेम। अच्छा, इधर भी पिक्चर ड्रॉ करना कंपलसरी है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट मेथड का जो हर एक सम में आई विल सजेस्ट यू टू ड्रॉ द पिक्चर। कौन सा पिक्चर? ये वाला पिक्चर। वाह, काफी गंदा हो गया, लेट इट मेक क्लीन एंड फ्रेश। यस, ये वाला जो पिक्चर है, हमेशा इस पिक्चर को ड्रॉ करो, सर विल गेट इम्प्रेस्ड, राइट। ओ वाओ, पिक्चर ड्रॉ किया है। सो नाउ u1 u2 तो पता है पहले से, एंड उसको हम लोगों ने जस्ट माइनस कर दिया, u2 माइनस u1 वैल्यू पुट कर दिया, एंड वी विल गेट दिस वन, रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस 4df। u2 माइनस u1 को x डाल दिया, y। लेट्स गो टू द इमेज। देखो, दिस वन इज u2, ये पूरा u2 है, एंड दिस वन इज u1, ये वाला। तो सिंपली दोनों को माइनस करेंगे, देन वी विल गेट दिस डिस्टेंस इज x। गॉट इट? दैट्स वाई u2 माइनस u1 इज x। तो सिंपली उसको x से रिप्लेस कर दिया, एंड इधर तो डी स्क्वायर 4df रूट के अंदर है, इधर से स्क्वायर को रूट को इस तरफ लेके आओ, मतलब स्क्वायर करके f कैलकुलेट करो, दिस वन। एकदम सिंपल, मतलब क्वेश्चन 1 जिसको आएगा 3 2 3 4 5 सबको आएगा,
क्वेश्चन 1 मतलब ये जो कंसेप्ट मैंने बोला था, अगर ये क्लियर होगा देन 2, 3, 4 एंड फर्दर ऑन विल बी क्लियर, राइट? ओके, नेक्स्ट स्लाइड. फॉर टू पोजिशंस ऑफ कन्वेक्स लेंस, सेम वी गेट टू इमेजेस, पहले से ही पता है. शो दैट u1 इक्वल्स टू v2, u2 इक्वल्स टू v1. पिक्चर सेम होगा, ठीक से देखते हैं. u1 दैट इज दिस वन, ये सेम होगा v2 के साथ. ये v1 दिस विल बी सेम विथ u2. v1 u2 के साथ चला जाएगा. u1 एंड v2 रिलेशन में होगा, v1 एंड u2 रिलेशन में होगा. ये प्रूफ करना है एकदम क्रॉस की तरह. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. कहा गया? यस. सो d is the distance as you all know. d equals to u1 plus v1. d तो सिंपली नो ऑब्जेक्ट टू स्क्रीन था, तो u1 plus v1, उधर से v1 निकाल लिया, u2 plus v2, v2 निकाल लिया. u1 का वैल्यू पता है, u2 का वैल्यू पता है. ये जो इक्वेशन है इसमें ये u1 का वैल्यू डाल दो, ये जो इक्वेशन है इसमें u2 का वैल्यू डाल दो. देखो दिस वन कैलकुलेट करो, देखो ये आएगा v1 इक्वल्स टू u2, फिर v2 का कैलकुलेशन डाल दो. ये तो भाई साहब v2 होना चाहिए, रियली सॉरी फॉर दैट, ये v2 होगा, राइट? गलती से v1 लिख दिया. v2 इक्वल्स टू u1, मतलब ऑपोजिट वाला सेम होगा. सिंपल सिंपल. नेक्स्ट, फॉर टू पोजिशन ऑफ लेंस, मतलब लेंस का दो पोजिशन, वी कंसिडर साइज ऑफ द इमेजेस आर i1. अच्छा, मतलब दो जो इमेज फॉर्म हुआ उसका हाइट यू कैन से और साइज इज गिवन i1 एंड i2. तो हम लोगों को ये प्रूव करना है i इक्वल्स टू रूट ओवर i1 इंटू i2 वेयर i इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. i तो इधर ऑब्जेक्ट का साइज है, हाँ याद रखना. हम लोगों ने o या फिर कुछ और कंसिडर नहीं किया ताकि ये इक्वेशन नो एक इजी तरफ एक नो कैची टाइप लगे. सो i इज बेसिकली द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. पिक्चर एज यूजुअल सेम. फॉर फर्स्ट पोजिशन एम, आई थिंक मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है लेंस का उसको याद किया जा सकता है, v बाई यू, इमेज बाई ऑब्जेक्ट, और सिंपली i बाई o, राइट? यही फॉर्मूला जो मिरर में था. मिरर में क्या था? m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू इक्वल्स टू i बाई o. लेकिन लेंस में क्या है? सिंपल v बाई यू, कोई माइनस माइनस नहीं है, इक्वल्स टू i बाई o, राइट? सो फॉर फर्स्ट पोजिशन ये लिख सकते हैं सिंपली, दैट इज m इक्वल्स टू i1 बाई i, v1 बाई u1, एंड नीचे देखो m2 इक्वल्स टू i2 बाई i इक्वल्स टू v2 बाई v1, राइट? ओके, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. दिस वन m1 इंटू m2 दैट इज i2 बाई i1, i2 बाई, जस्ट ए मिनट, ये तो i1 होगा, दिस वन विल बी i1, हाँ, i1 बाई i, i2 बाई i, m1 की जगह वैल्यू डाल दिया v1 बाई u1, m2 की जगह v2 बाई u2, और सिंपली i1 i2 बाई i स्क्वायर. अभी अभी हम लोगों के पास ये कैलकुलेशन आया जो क्वेश्चन बेसिकली था, कहाँ पे था ये वाला, कि क्वेश्चन 3 में था v1 इक्वल्स टू u2 एंड v2 इक्वल्स टू u1, राइट? सो सिंपली वैल्यू डाल दिया, वैल्यू पुट कर दो, देखो वी विल गेट दिस i इक्वल्स टू रूट ओवर i1 प्लस i1 इंटू i2. दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, राइट? ये काफ़ी नो इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. क्वेश्चन तो सेम ही है भाई साहब. फॉर फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस, इमेज का साइज i1 है, सेकेंड पोजीशन के लिए i2 है, प्रूफ करो दिस इक्वल टू दिस. पिक्चर सेम होगा. तो x, ये जो प्रूफ है, प्रूफ में क्या है? x दिया गया है. x क्या था? बेसिकली दो लेंस का जो पोजीशन था उसका डिफरेंस था. फॉर फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लेंस m1, ये हम लोगों ने अभी लिखा, u1 u2 वी नो दिस, m2 वी नो दिस, u2 we know this. x equals to u2 minus u1, we also know this. u2 u1 का वैल्यू डाल दिया, we will get this. Now the twist starts. रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस 4df, इसका वैल्यू क्या आया? x, राइट? तो ये जो u1 का इक्वेशन है इसमें इसकी जगह x डाल सकते हैं और इसकी जगह x पुट कर सकते हैं. तो सिंपली u1 क्या होगा?
d माइनस एक्स बाई टू, यू टू क्या होगा d प्लस एक्स बाई टू, राइट, d माइनस एक्स बाई टू, d प्लस एक्स बाई टू। मैग्निफिकेशन का रेशियो किया, ऊपर में क्या किया था मल्टीप्लीकेशन, इसमें क्या किया रेशियो किया, m1 बाई m2 वैल्यू पुट कर दिया, m1 का वैल्यू डाल दिया, m2 का वैल्यू डाल दिया, i दिस आई कैंसिल हो गया, तो सिंपली i1 बाई i2। तो रिप्लेस कर दो, v2 की जगह u1, u2 की जगह v1, दिस i1 i2 है, एंड ऊपर क्या होगा u2 स्क्वायर, स्क्वायर कहा गया स्क्वायर, नीचे क्या होगा u1 स्क्वायर, सो i1 बाई i2 इक्वल्स टू u2 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर। u2 का वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखा कि d प्लस एक्स बाई टू, u1 का वैल्यू क्या लिखा d माइनस एक्स बाई टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस वन इज द प्रूफ। प्रोसेस ऑन एन एवरेज सेम है, जस्ट थोड़ा सा ट्रिक्स है, इधर उधर रिप्लेसमेंट चाहिए। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर फिक्स्ड, जो मैंने पहले ही बोला था कि इधर हम लोग ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को फिक्स रखेंगे। फॉर टू पोजिशन ऑफ कन्वेक्स लेंस वी गेट रियल इमेजेस, वी नो दैट मैग्निफिकेशन आर m1 m2, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट कितना है x से, तो फोकल लेंथ ऐसे निकालना है x बाई m1 माइनस m2। तो देखो सेम थिंग इज रिटन, पिक्चर सेम ड्रॉ करना होगा। जो CW कॉपी में आप लोग कॉपी करोगे, हर एक साम में I want to see the picture, right? You can write pic same. Being a teacher, it's no फायदा for me, but being a student, आप लोगों को हर एक पिक्चर में, हर एक साम में पिक्चर ड्रॉ करना होगा, that's a rule. So for first position of lens का first position, we know that object distance u1, image v1, focal length f, right? Object distance minus u1, huh? That is, you know, in the opposite direction of the light. So simply value put कर दिया and we got this equation. Okay? फिर बोथ साइड v1 से मल्टीप्लाई किया, v1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर में क्या होगा v1 बाई v1, v1 बाई u1, v1 बाई f। तो फिर ऐसा आएगा 1 प्लस v1 बाई u1 इक्वल्स टू v1 बाई f, v1 बाई u1 मतलब m1, दिस वन इज इक्वेशन 1। सिमिलर कैलकुलेशन विल गो फॉर सेकेंड पोजिशन, इमेज ऑब्जेक्ट माइनस u2, इमेज v2, ये छोड़ो, फोर्थ लाइन चलो, दिस v2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सिमिलर है। फिर दोनों को माइनस करो, 1 माइनस 2 देखो लिखा हुआ है, डूइंग 1 माइनस 2, सिंपली 1 कैंसिल हो जाएगा, m1 माइनस m2, v1 माइनस v2 बाई f, v1 माइनस v2 मतलब, अब इस लाइन को देखो, v1 माइनस v2 इक्वल टू x, कैसे सर, लेट्स गो टू द फर्स्ट डायग्राम, this one, let's make it clear, oh no, ये जो है this one is v1, this one is v2, देखो v1 v2, तो इन दोनों का गैप में कौन है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है x, राइट? तो सिंपली v1 माइनस v2 कैन बी रिटन एज x, वही हम लोगों ने लिखा, कहा गया यस, v1 माइनस v2 इक्वल टू x, तो सिंपली x डाल दिया, देन f इक्वल टू दिस, सिंपल, मतलब जस्ट थोड़ा सा ट्रिक्स एंड नो है, सो बस खत्म, लेंस नो, बस इतना तक। So students, that's all from today's session. I hope you have learned few things from this topic, right? And बस मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 लेंस का तीनों कंप्लीट कर लेना, राइट? बस आज के लिए चलते हैं, हैव अ गुड टाइम, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।